औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये NC511 लेसन नंबर 32 है हमारे पास, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स एंड डिसऑर्डर। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि हमारे ब्रेन में लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस हो रही होती है। बेसिकली लैंग्वेज और ब्रेन का रिलेशनशिप स्टडी हो रहा है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। Disorder of syntax. Syntactic deficits are common in language disorder and have always been at the focus of research on language disorder. ये जो syntactic disorder हैं ये common disorder हैं, common language disorder हैं, और जो language disorder पे जो studies होती है, research study है, उसका ये हमेशा से focus रहे हैं. Interest on syntactic deficit in language disorder first focus on Broca's aphasia, an acquired language disorder caused by stroke affecting लेफ्ट फ्रंटल ब्रेन रीजन्स के जो इंटरेस्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर में वो ब्रोका's एफेसिया की स्टडी के बाद पैदा हुआ है। ब्रोका's एफेसिया बेसिकली हम पढ़ चुके हैं, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है और इसमें जो है वो स्पीच प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, और इस का शिकार जो पेशेंट होते हैं वो कंटेंट वर्ड से के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और फंक्शन वर्ड को वो ओमिट कर रहे होते हैं। The core symptom of Broca's aphasia is so-called agrammatic spontaneous speech production, which is characterized by omission of free functional elements and a self-reduction of the length and syntactic complexity of utterances. As the term agrammatic already indicates that spontaneous speech of language impaired speak suffering from this disorder gives the impression of lacking syntactic structure. Hence, agrammatic Broca's aphasia has been considered the ideal candidate for investigating syntactic deficit. इसमें ये बताया गया कि जो Broca's aphasia थी उसने बेसिकली कंसीडर होता है एक आइडियल कैंडिडेट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सिंटैटिक डेफिसिट को की स्टडी करने के लिए, यानी एज ए सैम्पल वो Broca's aphasia के पेशेंट को लेते हैं. It is conception hold true the language organ in the human brain could be affected by the brain lesion involving this organ. अच्छा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है. According to Chomsky, generative approach the human language faculty is due to specialized domain specific language organ situated in the brain. अच्छा, चोंक्सी ने जैसे कहा था आप जनरेटिव ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट में कि जो लैंग्वेज अक्वायर करने की एबिलिटी है वो ह्यूमन माइंड में होती है, तो अगर यहाँ पे फिर एफेजिया में जो ब्रेन होता है हमारा माइंड वो डैमेज होता है और लैंग्वेज एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इससे तो फिर यही साबित होता है कि चोंक्सी का जो नज़रिया था वो सही था. Consequently, from the late 1960 to the late 19 ये एमसीक्यूज में आ सकता है, डेट्स आपने लाजमी याद रखनी है. The linguistic investigation of language disorder associated with syntactic deficit was predominantly considered with the language deficit observed in Broca's aphasia. Next topic number 188 है हमारे पास aphasia to neurolinguistics. Aphasia is an acquired language disorder subsequent to brain damage in the left hemisphere. It is characterized by diminished abilities to produce and understand both spoken and written language compared with the speaker presumed ability to pre-cerebral damage. इसमें यही होता है कि written और spoken language जो है उसको comprehend करने में, उसको understand करने में प्रॉब्लम हो रही है aphasia में. This type and severity of the aphasia depends not only on the location and extent of the cerebral damage but also the effect on the lesion has on connecting areas of the brain. अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो aphasia होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ पे एफेसिया की जो टाइप्स होती हैं उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे ब्रेन के कौन से वाले हिस्से में डैमेज हुआ है. लैंग्वेज चेंज एसोसिएटेड विद द नॉर्मल एजिंग आर नॉट classed as aphasia. The most common cause of aphasia is the cerebral vascular एक्सीडेंट. ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एफेजिया का जो कॉमन काज है, जो बेसिक काज है वो क्या है, वो है CVA. लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काज हो सकते हैं. CVA की एब्रीवेशन भी आपसे पूछ जा सकती है, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट. इसके अलावा ब्रेन डैमेज हो सकता है, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हो सकती है सच एज रोड एक्सीडेंट और गन शूट वाउंड्स and also cause aphasia. Aphasia following such as traumatic events is non-progressive in contrast to aphasia arising from brain tumor. brain tumor भी हो सकता है, some types of infection भी हो सकता है ब्रेन में, और language disturbance in progressive conditions. अब language disturbance की यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है डिजीज़ की, अल्जाइमर डिजीज़. ये वाली एक डिजीज़ है, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस का जो काज बन रही होती है. The diagnosis of primary progressive aphasia as opposed to non-progressive aphasia. The main focus of this article is based on the following inclusion and exclusion criteria. अच्छा, यहाँ पे inclusion और exclusion का concept दिया गया है. M. Marshall Maslam in
2001 इंक्लूजन क्राइटेरिया एज अ फॉलोइंग। इंक्लूजन को उसने ऐसे डिफाइन किया है, डिफिकल्टी विद लैंग्वेज दैट इंटरफेयर्स विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड एफेजिया एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स, कि जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो इंटरफेयर कर रहा होता है, और इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो एफेजिया है। एक्सक्लूजन की एग्जांपल उसने दी है, जैसे क्राइटेरिया एज फॉलोज, अदर नॉन डीजनरेटिव डिजीज और मेडिकल, इसमें नॉन डीजनरेटिव डिजीज और मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, साइक्थेरिक डायग्नोसिस, एपिसोडिक मेमोरी, विजुअल मेमोरी एंड विजुअल परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट्स एंड फाइनली इनिशियल बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 188 है हमारे पास, रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर। अब रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है कि हमें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, और किस किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर्स अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ ट्रबल विद एनी पार्ट ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। जब रीडिंग के किसी प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है तो उस अफेजिया को, उस एबनॉर्मेलिटी को हम रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर कॉमनली कॉल्ड डायलेक्सिया, और जो रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको बेसिकली डायलेक्सिया कहते हैं। डायलेक्सिया ये एमसीक्यूज में आ सकता है। दीज डिसऑर्डर आर प्रेजेंट फ्रॉम यंग एज एंड यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम स्पेसिफिक डिफरेंसेस इन द वे दैट द ब्रेन प्रोसेस लैंग्वेज, और ये जो हमारा लैंग्वेज को ब्रेन किस तरह से प्रोसेस कर रहा है उसमें डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जो इसके बेसिक 3-4 सिम्टम्स यहाँ पे दी कि आपने जस्ट वही याद करना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं आपसे और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ट्रबल विद हैंड राइटिंग, जिन लोगों को डायलेक्सिया होता है उनको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी रीडिंग क्विकली, वो स्पीड से नहीं पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम रीडिंग विद करेक्ट एक्सप्रेशन, वो रीडिंग के दौरान एक्सप्रेशन जो है वो सही नहीं दे सकते हैं, यानी कि वो कोई सैड रीडिंग, मतलब ऐसी चीज़ रीड कर रहे हैं जिसमें कुछ सैडनेस का जिक्र हो रहा है तो उनको अब पता नहीं है कि किस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द रिटन वर्ड, और रिटन वर्ड को अंडरस्टैंड करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 190 है हमारे पास, फोनोलॉजिकल एंड सरफेस डायलेक्सिया। Surface dyslexia is a type of dyslexia or reading disorder according to Marshall, Newcombs and M.C. Carthy Warrington study. Patient with this kind of disorder cannot recognize a word as a whole due to the damage of left parental or temporal lobe. इसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है उसको पेरेंटल और टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है और वो उसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है रिटन वर्ड्स को। इंडिविजुअल विद सरफेस डायलेक्सिया आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज अ वर्ड एज अ होल वर्ड एज अ रिट्रीव इट्स प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम मेमोरी, और वो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं और उसकी अपने माइंड से उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे होते, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे होते हैं। दिस पेशेंट विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर रीड नॉन वर्ड्स फ्लुएंटली लाइक यचट, जो कि नॉन वर्ड्स होते हैं उनको वो फ्लुएंटली रीड कर रहे होते हैं, बट स्ट्रगल विद वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स को रीड करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। अब वो किस तरह से वर्ड्स को गलत पढ़ रहे होते हैं, जैसे मिंट वर्ड है ना तो वो उसके लिए रेगुलर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं उनका स्ट्रक्चर। अब मिंट जो है तो जब वो वर्ड पाइनेट पढ़ेंगे, पाइनेट तो उसको वो मिंट की तरह ही पेंट पढ़ेंगे। ऑफन सिमेंटिक नॉलेज इज प्रिजर्व इंडिविजुअल विद सर्फेस डायलेक्सिया। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें इनको क्या होता है, डायलेक्सिया में ये उसी के टॉपिक के अंदर इस सब टॉपिक इन्होंने बनाया हुआ है। इंडिविजुअल्स विद दैट फॉर्म ऑफ डायलेक्सिया टिपिकली हैव डिफिकल्टी साउंडिंग आउट अनफेमिलियर वर्ड्स एंड डू पुअरली ऑन टेस्ट ऑफ नॉन वर्ड्स रीडिंग। इसमें जो होता है उन्हें वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी साउंड्स कैसी है वो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। स्टूडेंट कांट ब्रेक डाउन इंडिविजुअल साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी उन्हें फोनीमिक अवेयरनेस नहीं होती है और एक वर्ड्स में जो साउंड्स हैं वो उन्हें ब्रेक नहीं कर पा रहे होते हैं। मोस्ट kids with reading issues have some degree of phonological dyslexia. It also sometimes referred to as a dysphonetic dyslexia. डायस्फोनेटिक डायलेक्सिया भी इसको कहते हैं, फोनोलॉजिकल जो डायलेक्सिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास डायलेक्सिया को उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है। डायलेक्सिया बेसिकली जो रीडिंग और राइटिंग की डिसेबिलिटी को कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी दैट स्पेसिफाई इम्पेयर्स पर्सन एबिलिटी टू रीड ऑल्दो द डिसऑर्डर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये जो डिसेबिलिटी होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। इसमें जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं मैनिपुलेशन ऑफ साउंड, स्पेलिंग्स और रैपिड विजुअल वर्बल रिस्पॉन्डिंग एक्सेट्रा। डायलेक्सिया कैन बी इनहेरिटेड इन सम फैमिलीज एंड recent studies have identified a number of genes that may predispose an individual to developing dyslexia. अच्छा, इसमें ये भी होता है कि ये जो डायलेक्सिया होता है, पीछे हमने जो सारी अफेजिया वगैरह की टाइप्स पढ़ी हैं वो बेसिकली किसी ब्रेन डैमेज की वजह से, किसी इंजरी की वजह से होता है, लेकिन ये वाला जो डायलेक्सिया होता है ये हमें विरासत में मिल सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, यानी हमारे पेरेंट्स में था और फिर बच्चों को भी हो सकता है।
वर्ड डिकोडिंग में इन्हें प्रॉब्लम सब किस किस चीज़ में आ रही होती है। वर्ड डिकोडिंग में लैक ऑफ फ्लुएंसी, यानी कि फ्लुएंट नहीं होती है, और पुअर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो समझ नहीं रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर हमारे पास 192 है डीप डायलेक्सिया। डीप डायलेक्सिया सरफेस डायलेक्सिया का बेसिकली उलट है। डीप डायलेक्सिया इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन एक्वायर्ड रीडिंग डिसऑर्डर अपोज टू डेवलपमेंटल डायलेक्सिया। डेवलपमेंटल डायलेक्सिया का ऑपोजिट है एंड प्रीवियसली लिटरेट अडल्ट एज कंसिक्वेंस ऑफ अ ब्रेन इंजरी, और ये ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। हाउएवर रिसेंटली डेवलपमेंटल डीप डायलेक्सिया हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन विद विलियम्स सिंड्रोम। ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है, किसने इसको रिपोर्ट किया था, विलियम्स सिंड्रोम। डीप डायलेक्सिया इज कंसीडर टू बी सेंट्रल डायलेक्सिया, और ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको और नाम क्या है, इसको और कंसीडर क्या किया जाता है, सेंट्रल डायलेक्सिया एज कम्पेयर टू द पेरिफेरिकल डायलेक्सिया। पेरिफेरिकल डायलेक्सिया हैव डिफिकल्टी मैचिंग द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर दैट कंप्राइज अ वर्ड टू अ स्टोर्ड मेमोरी ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम प्रायर इनकाउंटर्स। उसमें किसी वर्ड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच करने में प्रॉब्लम हो रही होती है पेरिफेरिकल डायलेक्सिया में, जबकि सेंट्रल डायलेक्सिया में वर्ड को उसकी मीनिंग से मैच करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस डीप डायलेक्सिया इज मोर सेवर फ्रॉम द फोनोलॉजिकल डायलेक्सिया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो है डीप डायलेक्सिया इज मोर सेवर फ्रॉम फोनोलॉजिकल डायलेक्सिया, तो वो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है। When reading aloud, the written word view is read aloud as seen. The word bird is read as canary. The semantic errors are major distinguishing feature of deep dyslexia in comparison to other central dyslexias. There are many other symptoms of deep dyslexia, including visual error. Written word thing is read aloud as a think. उनको रिटन वर्ड में भी विजुअल एरर पे हो सकती है, जैसे अब थिंक वर्ड है तो उसको जब लाउडली वो रीड करेंगे तो उसको थिंक पढ़ेंगे, स्कैल वो स्कैल पढ़ देंगे।